Hello students, welcome back to PIM's YouTube channel. In today's lecture, I am going to tell you about हमने कितने साइबर अटैक्स पढ़े थे उनके आगे का हम आज कंटिन्यू करेंगे। इस यूनिट का नाम है अटैक टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो किया था मैन इन द मिडिल अटैक। आप कोई भी ऐसी सिंगल टेक्नोलॉजी तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं जो सारे मैन इन द मिडिल अटैक को प्रिवेंट कर सके। जनरली जो इंक्रिप्शन और डिजिटल सर्टिफिकेट्स है वो प्रोवाइड करते हैं एक इफेक्टिव सेफगार्ड अगेंस्ट मैन इन द मिडिल अटैक और जो इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की और इंटेग्रिटी की कम्युनिकेशंस की। पर a man in the middle attack can be injected into the middle of communications in such a way that encryption will not help. Man in the middle attack is ऐसे इस कम्युनिकेशंस के बीच में आ जाता है कि इंक्रिप्शन का की से कोई फायदा नहीं होता। For example, attacker A intercepts public key of person B and substitutes it with his own public key. When anyone wanting to send an encrypted message to P using P's public key is unknowingly using A's public key. Suppose जो A attacker है वो public key ले ले person B की और उसकी जगह substitute कर दे अपनी public key, तो वो कोई भी इंसान जिसे A को मैसेज भेजना है encrypted वो गलती से A की पब्लिक को P को भेजना वो A को भेजेगा और ये सारे मैसेजेस पढ़ेगा जो P को भेजे जा रहे हैं और सेंड कर देगा मैसेज P को encrypted फॉर्म में P की रियल पब्लिक को। एंड P will never notice that the message was compromised। P को पता नहीं चलेगा कि वो मैसेज कोई और भी पढ़ रहा है। As you can see, P is using encryption and thinks that information is protected, but it is not because of the man in the middle attack. So how can we make sure that P's public key belongs to P and not P? Certificate authorities and hash functions were created to solve this problem. When person 2 wants to send a message to P, and P wants to be sure that A will not read or modify the message, and that the message actually came from P, the following method must be used. P2 creates a symmetric key and encrypts it with P's public key. P2 sends the encrypted symmetric key to P. P2 computes a hash function of the message and digitally signs it. P2 encrypts his message and the message is signed hash using the symmetric key and sends the entire thing to P. P is able to receive the symmetric key from P2 because only he has the private key to decrypt the encryption. P and only P can decrypt the symmetrically encrypted message and signed hash because he has the symmetric key. He is able to verify the message has not been altered because he can compute the hash of received message and compare it to digitally signed one. P is also able to prove to himself that P2 was sender because only P2 can sign the hash so that it is verified with the P2 public key. Phishing and spear phishing attacks. अब phishing attack के बारे में पढ़ेंगे या spear phishing attack भी कहते हैं हम। Phishing attack is the practice of sending emails that appear to be from trusted sources with the goal of gaining personal information or influencing users to do something. Phishing attack क्या है कि आप emails भेजें जो ऐसा लगे कि genuine source से आ रहा है, trusted source से आ रहा है। इससे क्या होगा, आपको personal information में गेन करने का मौका मिल जाएगा और आप यूजर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ काम करवाने के लिए। It combines social engineering and technical trickery. इसके अंदर social engineering होती है और trickery होती है, trick यूज की हुई होती है। It could involve an attachment to an email that loads malware onto your computer. इसमें क्या होता है कि आप attachment भेज देते हो ईमेल में जो लोड कर रहा है malware को आपके कंप्यूटर पे। It could also be a link to an illegitimate website that can trick you into downloading malware or handing over your personal information. इसके अलावा एक लिंक भी इसमें भेजा जाता है किसी लेजिटिमेट वेबसाइट का इलेजिटिमेट, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप जो आपको ट्रिक करते हैं कि आप कोई मालवेयर डाउनलोड कर लो और हैंड ओवर कर लो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। स्पीयर फिशिंग इज वेरी टारगेटेड टाइप ऑफ फिशिंग। इसी तरह एक आती है स्पीयर फिशिंग जो बहुत ही टारगेटेड टाइप ऑफ फिशिंग एक्टिविटी है। अटैकर्स टेक द टाइम टू कंडक्ट रिसर्च इनटू टारगेट्स एंड क्रिएट मैसेजेस that are personal and relevant. अटैकर्स क्या करते हैं, रिसर्च करने के लिए टाइम लेते हैं, ठीक है, वो रिसर्च करते हैं अपनी फुल टारगेट्स के बारे में, मैसेजेस क्रिएट करने के लिए पर्सनल हो और रेलेवेंट लगे
डिफिकल्ट होती है आइडेंटिफाई करने के लिए और उससे डिफेंड करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है। One of the simplest ways that a hacker can conduct a spear phishing attack is email spoofing. सबसे सिंपल तरीका है spear phishing कंडक्ट करने का email spoofing, which is when the information is in the from section of the email is falsified, making it appear as if it is coming from someone you know, such as your management or your partner company. Another technique that scammers use to add credibility to their stories website dawning. इसके अलावा एक टेक्निक है जो स्कैमर्स यूज करते हैं आपकी स्टोरी में क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए कि वेबसाइट को डाउन करना। दे कॉपी लेजिटिमेट वेबसाइट्स टू फूल यू। वो जो लीगल वेबसाइट होती है, लेजिटिमेट वेबसाइट होती है, उन्हें कॉपी करता है आपको फूल करने के लिए कि आप अपनी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर कर दो। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बीइंग फिश्ड यू कैन यूज दिस टेक्निक्स। फिशिंग से बचने के ये कुछ टेक्निक्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, डू नॉट एक्सेप्ट दैट एन ईमेल इज द रियल डील जस्ट बिकॉज यू आर बिजी और स्ट्रेस्ड और यू हैव 150 other 100 messages in your inbox. Stop for a minute and analyze the email. आप ऐसे ही किसी भी ईमेल पे, अनजाने ईमेल पे विश्वास ना करें। इससे इसीलिए क्योंकि आप बिजी हैं या स्ट्रेस्ड हैं। हो सकता है वो एक स्पूफिंग का तरीका, फिशिंग कोई कर रहा हो। Hovering over the links. Move your mouse over the link, but do not click it. Just let your mouse cursor over and over the link and see where would actually take you. आप माउस को लिंक के ऊपर ड्रैग कर सकते हैं, hover करें पर इसे क्लिक ना करें, जिससे और फिर देखें कि माउस आपका एक्चुअली किधर ले जाता है। Apply critical thinking to decipher the URL. Analyzing email headers. Email headers define how an email got to your address. email headers define करते हैं कि किस तरीके से कैसे email आपके पास आया है। The reply to and return path parameter should lead to the same domain as is stated in the email. email headers define करते हैं कैसे email आपके एड्रेस पर आया। reply to return path parameters भी लीड करते हैं आपको सेम डोमेन में जिसमें email स्टेट किया गया है। Sandboxing. You can test email content in a sandbox environment. Logging activity from open the attachment or clicking the links inside the email. हम email content को टेस्ट कर सकते हैं सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में, लॉगिन एक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं और अटैचमेंट और लिंक को ओपन कर सकते हैं इन क्लिकिंग द लिंक्स इनसाइड द ईमेल। फोर्थ टाइप ऑफ अटैक इज ड्राइव बाय अटैक। ड्राइव बाय डाउनलोड attacks are a common method of spreading malware. Hackers look for insecure websites and plant a malicious script into HTTP or PHP code on one of the pages. जो ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक्स होते हैं ये malware स्प्रेड करने का सबसे कॉमनली यूज मेथड है। हैकर्स इनसिक्योर वेबसाइट्स को ढूंढते हैं, एक malicious स्क्रिप्ट प्लांट करते हैं HTTP या PHP कोड में। स्क्रिप्ट में इंस्टॉल होती है मैलवेयर में डायरेक्टली कंप्यूटर में उसके जो वेबसाइट पर विजिट करता है और इट माइट रीडायरेक्ट द विक्टिम टू अ साइट कंट्रोल्ड बाय द हैकर्स, या फिर वो रीडायरेक्ट कर देगा विक्टिम को उस साइट पे जो कि हैकर्स कंट्रोल करते हैं। ड्राइव बाय डाउनलोड्स कैन हैपन व्हेन विजिटिंग अ वेबसाइट और व्यूइंग एन ईमेल मैसेज और अ पॉपअप विंडो। ड्राइव बाय डाउनलोड्स तब होते हैं जब वो हम कोई वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं या कोई ईमेल व्यू कर रहे होते हैं और या कोई पॉपअप विंडो खुल के आती है। Unlike many other types of cybersecurity attacks, a drive-by does not rely on the user to do anything to actively enable the attack. जैसे कि दूसरे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, एक ड्राइव-बाय अटैक कुछ ऐसा नहीं करता, ये रिलाई नहीं करता यूजर पे कि वो कुछ भी करे एक्टिवली अटैक को इनेबल करने के लिए। You don't have to click a download button or open a malicious email attachment to become infected. अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई डाउनलोड बटन क्लिक करें या कोई malicious email attachment को ओपन करें। ड्राइव बाय और डाउनलोड ऐप का एडवांटेज लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज लेता है या वेब ब्राउजर का, जिनकी सिक्योरिटी फ्लॉज है, अनसक्सेसफुल अपडेट्स है, लैक ऑफ अपडेट्स की वजह से। To protect yourself from drive-by attacks, you need to keep your browsers and operating systems up to date and avoid websites that might contain malicious code. अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को drive-by attack से बचा के रखें,
उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि आप अपने ब्राउजर्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखें, उन वेबसाइट्स को अवॉइड करें जिनमें मैलिशियस कोड हो सकता है। स्टिक टू द साइट्स यू नॉर्मली यूज, ऑल्दो कीप इन माइंड दैट इवन दीज साइट्स कैन बी हैक्ड। जो आप नॉर्मली वेबसाइट्स यूज करते हैं उन्हीं का यूज करें हमेशा, हालांकि ये वेबसाइट्स भी हैक की जा सकती हैं। और पॉपअप्स, आपको पता होंगे पॉपअप्स क्यों ब्लॉक किए जाते हैं, यही रीजन है कि पॉपअप्स जब आते हैं तो आप उनके मैलिशियस कोड होता है उनके अंदर, इनकेस आपने वो क्लिक कर दिया तो वो क्या करेगा, आपका सारा इंफॉर्मेशन ले सकता है। डोंट कीप टू मेनी अननेसेसरी प्रोग्राम्स एंड एप्स ऑन योर डिवाइस। बहुत सारे अननेसेसरी प्रोग्राम या एप्स ना रखते हैं डिवाइस पर। द मोर प्लगइन्स यू हैव, द मोर वल्नरेबिलिटीज देयर आर दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय ट्राई अटैक्स। जितनी प्लगइन्स होंगी जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी होगी जो एक्सप्लॉइट की जाती है ट्राई अटैक से। पासवर्ड अटैक, बिकॉज passwords are the most commonly used mechanism to authenticate users to an information system. Obtaining password is a common and effective attack approach. अब क्योंकि पासवर्ड सबसे कॉमनली इस मैकेनिज्म है यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने का या इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो पासवर्ड को ऑब्टेन करना एक कॉमन और इफेक्टिव अटैक अप्रोच है। किसी भी पर्सन के पासवर्ड को ऑब्टेन करना उनके डेस्क को स्निफ करके, कनेक्शन को स्निफ करके टू एक्वायर एन्क्रिप्टेड पासवर्ड यूजिंग सोशल engineering, gaining access to a password database, or outright guessing. The last approach can be done in either random or systematic manner. Brute force password guessing means using a random approach by trying different passwords and hoping that one works. Some logic can be applied by trying passwords related to the person's name, job title, hobbies, or small similar items. Brute force password guessing क्या होता है कि आप randomly किसी का भी पासवर्ड गेस कर लें, उसके नेम से लेके, या तो आप उसका नेम डाल दें, जॉब टाइटल डाल दें, हॉबीज डाल दें। इन ए डिक्शनरी अटैक, अ डिक्शनरी ऑफ कॉमन पासवर्ड इज यूज्ड टू अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू अ यूजर्स कंप्यूटर नेटवर्क। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, कोई भी डिक्शनरी आपको मिली कॉमन पासवर्ड्स की जो हो सकता है, जिससे आप क्या करें, एक्सेस गेन करेंगे किसी भी यूजर के कंप्यूटर नेटवर्क का। One approach is to copy an encrypted file that contains the passwords, apply the same encryption to a dictionary of commonly used passwords and compare the result. एक सिंपल अप्रोच ये है कि आप क्या करें, सेम encryption अप्लाई करें डिक्शनरी में कॉमनली यूज्ड पासवर्ड का, उनका रिजल्ट कंपेयर करें। In order to protect yourself from dictionary or brute force attack, you need to implement an account lockout policy that will lock their account after a few invalid password attempts. अगर आप चाहते हैं कि आप अपने को प्रोटेक्ट करें डिक्शनरी या ब्रूट फोर्स अटैक से, उसके लिए आपको नीड है कि आप इंप्लीमेंट करें एक अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, जो क्या करेगी, आपका अकाउंट लॉक कर देगी कुछ इनवैलिड पासवर्ड अटेम्प्ट्स के बाद। यू कैन फॉलो दिस अकाउंट लॉकआउट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सेट इट अप करेक्टली। SQL injection attack. SQL injection has become a common issue with database-driven websites. It occurs when a main factor executes an SQL query to the database via the input data from the client to server. SQL injection एक बहुत ही commonly used issue है जो database-driven websites पर है। ये तब occur करता है जब भी कोई main factor execute करता है SQL query को database में input data की help से एक client to server. SQL commands are inserted into data plane input. For example, instead of the login or password, in order to run predefined SQL commands, a successful SQL injection exploit can read sensitive data from the database, modify, insert, update or delete database data, execute administration operations such as shutdown on the database, recover the content of a given file, and in some cases issue commands to the operating system. For example, a web form on a website might request a user's account name and then send it to the database in order to pull up the associated account information using a dynamic SQL like this. तो ये 6 अटैक्स हमने कर लिए, 6 अटैक हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आगे से नेक्स्ट